I'm very, very keen on Sharmila because what a great story, domestic violence. You and I were talking about it. Yes. So, as chef de mission, to see these women come through and win medals, Rohit, forget your thing as official and head of the Indian delegation. Just as a person, it makes you feel good about these people and seek inspiration. Oh, absolutely. They are inspirations for even for people like us. I mean, so many adversities. You need a lot of grit, strength, endurance to be able to come through all that and yet come and represent India and get medals. I mean, what a story. I think these stories are to be told to Indians. I'm hoping she does well tonight, and then I'm going to personally make sure that some of my producer friends pick this up and tell this story to people of India. Kanan, you know this athlete as well. I mean, you and I were chatting about Sharmila. You've gone through adversity. We've all gone through. But when we see them, domestic abuse, violence, two daughters out of the house, and then making a career to have that self-belief, unbelievable. See, I was on the same flight as the 3x3 wheelchair basketball team, Para. And I saw them on the flight that they're cutting on their food intake so that they don't have to go to the loo. I was moved. As it is, I was carrying my food because I eat my meals on time. So what kind of sacrifice is it? You're cutting on your meal so that you don't have to go to the washroom again and again. Then meeting Jandu. Again, when I saw him, to be sitting next to him, I was almost at his feet. I was kneeling. He said, "Sir, आप क्या कर रहे हो?" मैं कहा, "आप बहुत बड़े हो." So it moves you because I have dealt with injuries. You know that. I've had knee injuries, knee fracture. So each time, we think, itna dard hai humko. But you look at them, forget it, don't complain. Same thing was echoed that day by Dr. Pardiwala. Correct. That the para athletes motivate you. Look at them as champions. I'm glad the able-bodied and para events are being held concurrently. It's a big message, probably for all of us. मेरा नाम शर्मिला है। मैं एक पैरा एथलीट हूँ। मेरा गेम शॉट पुट इवेंट है और मैं सेकंड बार कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जब मैं 2 साल की थी तब मुझे राइट पैर में बुखार की वजह से पोलियो हुआ था और मेरा बचपन गरीबी में गुजरा है। मेरी माँ ब्लाइंड है, पापा किसान थे और हम 3 भाई 1 बहन है। और जब 10वीं पास पढ़ाई की है और जब मैं 19 साल की हुई थी तब शादी कर दी गई। शादी करने के बाद हस्बैंड नशा करते थे, सास ससुर थे नहीं। हाँ, अकेले थे। हाँ, पहले एक्सपायर हो गए थे और नशा करते थे। उस नशे की वजह से फिर मारना पीटना शुरू कर दिया और बेटियों को जब मेरी दूसरी बेटी हुई तब मुझे ज्यादा परेशान करने लगे कि लड़का नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मेरे को रात को पीट के रात को 11 बजे से 3 बजे तक पीटा और नंगा करके बाहर खींच के पटक दिया गाड़ी में। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे ले आए वहां से। फिर मैं कभी परमानेंट वहां से आ गई, फिर कभी गई नहीं। उसके 6 साल तक मैं पियर में रही अपने मायके में। फिर मेरी दूसरी शादी कर दी गई और मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों बेटियों को भी एक्सेप्ट किया और मुझे भी। और अच्छी गाइडलाइंस थी स्पोर्ट्स में, उन्होंने हमें भेजा था कि आप गेम करो। तो उनकी वजह से मैं 34 साल की उम्र में मैं गेम में आई। हाँ, 2021 में मेरा पहला नेशनल था, उसमें गोल्ड विद नेशनल रिकॉर्ड। 2022 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ था। 20 जुलाई 2022 को मोदी जी ने भी मेरे से लाइव बातें की थी 20 मिनट तक टीवी। हाँ, मोदी जी ने 2022 में नहीं कॉमनवेल्थ जाने से पहले 20 जुलाई 2022 को यूट्यूब पे ही सब कहते हैं वो। और उसके बाद 2023 में एशियन खेला, उसमें भी फोर्थ रहेगी। एशियन के बाद फिर मैंने और अच्छी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वर्ल्ड चैंपियन में 5th रही, वर्ल्ड में मेरी 5 रैंक है। और अब मेरा कॉमनवेल्थ की बहुत अच्छी तैयारी है, आगे एशियन की भी अच्छी तैयारी है। कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड लेके आऊंगी और एशियन में भी गोल्ड लेके आऊंगी। सेकंड कॉमनवेल्थ फोर्थ पे रहेगी सर। पैरा सीडब्ल्यूजी में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी, दोनों में फोर्थ। हाँ। अभी वर्ल्ड में 5th हूँ और दोनों में गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, कॉमनवेल्थ और एशियन में। मैम कितने मार्जिन से आप फोर्थ रह गई थी पिछले कॉमनवेल्थ में? कितना? 60 सेंटीमीटर से। अभी पर्सनल बेस्ट कितना है आपका? 10.03 रैंक है वैसे तो, लेकिन ग्राउंड पे मेरा 10.40 बेस्ट है।
ये अच्छा आपने जिस तरीके से स्ट्रगल आपका रहा है वहाँ पर, तो मैं आपके पहली शादी के बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछ रहा, बट आपकी सेकंड शादी जब हुई, आपके वो हस्बैंड जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनका क्या नाम है, वो अजीत क्या करते हैं? अजीत सिंह, मेरे हस्बैंड का नाम अजीत सिंह है और वो एक मिस्त्री है जी, मोटर पंखे जो रिपेयरिंग करते हैं वो मिस्त्री है। तो उन्होंने कैसे आपको स्पोर्ट्स में डाला और कैसे वो मतलब वो खुद खुद शहर में रहने वाले थे ना, गेम स्पोर्ट्स देखते थे ना, न्यूज न्यूज में सुनते भी थे, तो उन्होंने ही बताया था आप गेम करो। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था और मुझे नहीं पता था पैरा के भी गेम होते हैं, फिर मैंने अपने गुरुजी के पास कॉल की, जहाँ स्कूल में पढ़ती थी प्रिंसिपल के पास, एसडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने सर ने मेरे को बताया कि आप तुलाराम स्टेडियम में जाओ, वहाँ पे कोच मिलेंगे, मेरी बात करवा देना। फिर मैं तुलाराम स्टेडियम में गई, उधर मुझे हमारे रिलेटिव भैया टेकचंद भैया जो ओलंपियन रहे हैं वो मिले। उनके साथ पैरा एथलीट 44 के देवेंद्र हैं जो अभी कॉमनवेल्थ में जा रहे हैं। इन दोनों ने ही मेरे को बताया कि आप भी 57 में खेलो, शॉटपुट खेलो, अच्छी खिलाड़ी बनोगी। फिर टेकचंद भैया ने मेरी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कभी आप कर। अमित सरोवर से मिले हैं? अमित सरोवर से भी मिले हैं, ये जो क्लब थ्रो करते हैं। अमित सर हुआ अच्छा, तो आपका ये जो 19 साल की एज में आपकी पहली शादी कर दी, तो वो जो 6 साल का पीरियड तो बहुत टफ रहा होगा हाँ आपके जी, लिए। बहुत टफ। तो तीन कैसे दो तब आप बेटी। स्पोर्ट नहीं करती थी ना? तब तो स्पोर्ट नहीं खेलती थी आप, नहीं नहीं घर में ही रहते थे। हाँ, और आप घर का काम करते थे गांव में जैसे करते हैं, भैंस का, खेतों का। मम्मी बुलाई थी, काम हमें ही करना पड़ता था। और फिर पापा गरीब ज्यादा थे ना, दो बेटियां और एक में, फिर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया घर में, इसलिए दूसरी शादी उन्होंने मेरी मजबूरी में करनी तो पड़ी। आपकी दोनों बेटी पहली शादी से हुई? हाँ, अच्छा। ये मेरे साथ है। तो आपने जो कुछ स्ट्रगल देखा है, मतलब जैसे अब्यूजिव शादी थी आपकी, आपको बेटी या पैदा होने इसके लिए भी आपको टॉर्चर किया गया। आपकी खुद की बेटियां हैं, आप उसके लिए क्या फ्यूचर देखते हैं? आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं अपने लिए या देश के लिए, उससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी बेटियों को? हाँ जी, मेरी बेटी अभी तो प्लेयर है ना, बड़ी वाली जेवलिन की है, छोटी शॉटपुट की है। क्या नाम है और क्या बड़ी बेटी का नूज नाम है, छोटी का लक्ष्मी। कितना एज है दोनों की? ये अंडर 16 में, बड़ी वाली छोटी अंडर 14 में खेलती दोनों है। जेवलिन? नहीं, छोटी वाली लॉन्ग जंप में। अच्छा, और बड़ी वाली जेवलिन करती है। बड़ी बेटी अनुज अंडर 16 में जेवलिन। तो अभी कहीं कुछ खेली है कहीं डिस्ट्रिक्ट स्टेट? हाँ जी, नेशनल नॉर्थ जोन में अनुज का गोल्ड मेडल है। ये है आपकी? हाँ, इधर ही है। ये बड़ी बेटी आपकी? और अच्छा, ये छोटी जेवलिन छोटी तो छोटी है, बस बच्चों में खेलते हैं जैसे अंडर 14 अंडर 12 में लॉन्ग जंप में तो गोल्ड। ये आपने सोच रखा है कि अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्समैन हाँ, बनाना मैंने जब गेम स्टार्ट किया ना, मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया था, तीनों ही मम्मी बेटी तुम गेम स्टार्ट करो, तीनों ही गेम में उतर जाओ। है? तो आपका है ना, अभी आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, कहाँ पर जो सबसे टाइम? बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन हुई थी हमारे दिल्ली में अभी ये पैरा 2025 वाली में। जो हुई थी पिछले साल हाँ की? हाँ हाँ, इसी में मेरा बेस्ट रहा, वर्ल्ड की 5 रैंक, क्या रहा आपका? वर्ल्ड की 5th रैंक। फिफ्थ रैंक मेडल? नहीं, 5th है ना वर्ल्ड में, अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड में चैंपियन थी। अच्छा, ओके। तो आपका और ये दुबई खेला था फरवरी में, दुबई वर्ल्ड ग्रांड हाँ, प्रिक्स फजा था, उसमें फजा मेरा एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा। आपकी बड़ी बेटी की एज अपनी 16 बताइए, हाँ, और छोटी? छोटी 13 साल की है। मैम ये आप 15 साल की अंडर 16 में आती है। अभी आपकी एज हाँ, मेरी 40 साल। अभी 40 इयर्स। और 34 की एज में आपने शुरू किया हाँ खेलना, तो काफी लोग के लिए बहुत लेट हो जाता है 30 के हाँ, बाद शुरू ऐसे तो करना। मोदी जी ने भी बोला था, जब आपने गेम स्टार्ट किया तब तो खिलाड़ी गेम छोड़ देते हैं। तो तो आपका बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मेंटली आप रेडी थे कि आप नहीं, नहीं? मेंटली रेडी तो मेरे हस्बैंड ने किया मेरे को, और गेम में फिर जैसा अंदर से हौसला होता है बॉडी ऐसे ही काम करेगी। ये नहीं होता कि एज होती है ऐसे ही खेलना पड़े तो कुछ। अच्छा, आपके हस्बैंड आप बता रहे हैं मिस्त्री है उसने, तो हाँ, ये फिर गेम में मतलब सपोर्ट फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती अब होगी, तो बहुत पैसा कैसे कैसे दिक्कत तो मैनेज बहुत किया? आती है, खुद कैसे का स्पोर्ट कंटिन्यू कैसे रहने का किया? घर भी नहीं रहा अब तक, तो इतना खर्चा लगाया हमने। जब वर्ल्ड में 5th रैंक आई है तब कंपनियों ने स्टार्ट किया इसको स्पॉन्सर फिर करना। क्या आपने क्या अपना कोई बेचना पड़ा, गहने हाँ, वहने का ऐसा भी रहा है? घर बेचना पड़ा ना, रहने का जो हमारे एक ही घर था कहाँ पर था ये? रेवाड़ी रेवाड़ी में, वो बेच दिया, से। उसी में रहते थे? हाँ, उसी में तो रहते थे। अभी आप अब किराए पे है। अब मेडल आने के बाद घर खरीदेंगे। अपना रेवाड़ी में ही रहते हो? हाँ कब जी, बेचा था? ये 2023 में एशियन के बाद। पैरा एशियन गेम्स के बाद बेच दिया। 4th रह गए ना, तो इस गेम में ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दो,
लेवल पे पहुंच रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं, पीछे ना हटो। फिर मेरी माँ ने भी जमीन बेच के मेरे को सहारा दिया था। मेडल आता तो शायद स्टेट्स भी मदद मिलती है, वो कैश अवार्ड। हाँ, वो मिलती है सर, टाइम पे मिल जाए तो कुछ नहीं है साधन। बॉक्स वगैरह में नहीं है। लेट नहीं, अभी नहीं, अब हो जाऊंगी इस गेम के बाद। जी। और जीक्यू कंपनी, हीरो से, जीक्यू से, एनटीटी टाटा से, डीपी से सपोर्ट तो अब बहुत अच्छी मिली। आपका कितना मतलब एक्सपेंस होता है कि आपको घर बेचना पड़ गया, महीने का कितना खर्चा होता था? सर खर्चा तो एक खिलाड़ी का मिनिमम 1 लाख रुपए लग जाता है लग ही जाता है। एक महीने अभी में। आप कोई जॉब करते हैं कहीं डिपार्टमेंट में नहीं, कहीं? पहले हरियाणा रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, ये फिर वो कब की जॉब बात है? छूट गई थी जॉब। हाँ। उसके बाद अब मुझे बुला रही है कि वहाँ से मैसेज भी, आज भी कॉल आई थी कि आप ज्वाइन करो। मैं नहीं करूँगी, मैं बोली कि अब तो मुझे गेम करना है, गेम के बाद ही कोई ये अच्छी। कब की बात है? आज भी नहीं, आप कब टाइम पे 2018 करते में थे? 18 कब तक किया ये आपने? कंडक्टर जो काम? ये जब किया था, बस थोड़े दिन, कितने महीने? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने? 1.5 2 महीने। लेकिन ये था कि पहली महिला हाँ, कंडक्टर ये हरियाणा। प्रशंसा पत्र भी मिल रहा है मुझे, वो लेकर। तो वो कोटा रहा होगा कुछ उसमें ये जैसे। नहीं, जब हमारे वहाँ पे हड़ताल हुई थी हरियाणा में, हरियाणा रोडवेज की, तब जॉब मिली थी। अच्छा। हाँ, तो फिर वो क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं वो सरकार ने इन्होंने छुटवा दी ना, छूट बाद में ही हड़ताल खत्म हो गई, फिर सब हाँ, लोग लौट आए होंगे। फिर अरे अब बुला रहे हैं, अब आ जाओ। अब मुझे नहीं जाना, अब क्यों जाएंगे? अब तो जाना लाइफ खराब करनी है। अब क्यों जाना? अब तो मेडल सिटी बस लेके में आना है। बजवा लेते हैं ग्राउंड में एक जगह सिटी बच सकती है। हम अपने लाइफ को पीछे देखते हैं अगर, तो काफी इवेंटफुल है। 34 की एज में आपने गेम्स शुरू करा। हाँ। आप बता रहे हो कि आप बहुत जल्दी में नेशनल किया, फिर पहली शादी भी ऐसी थी। तो कैसा फील होता है? आप आपने पूरी लाइफ पूरी चेंज कर दिया धीरे धीरे करके। तो अब तो ऐसे फील हो रहा है जैसे दूसरा जन्म लिया हो। होता है ना ऐसे, गर्ल बैक में कैसा था, अब कैसा था। और अब तो बाकी तो मैं संभाल लूंगी, मेहनत करके मेडल ओलंपिक तक तो पहुंच ही जाऊंगी। और आप बता रहे हो कि 2 बहनें आपने एंड 1 भाई है। हाँ, तो आप सबसे बड़े? नहीं मेरी एक बहन बड़ी, एक छोटी है। भाई मेरे से 10 साल का। भाई 10 साल। 3 बहनों आप हाँ, और 1 छोटा भाई है। तो होता है ना गाँव में, बेटियां जवान होती है ब्याह देते हैं, भाई छोटा था मान दी थी इसलिए फादर जल्दी क्या शादी। करते थे? किसान।